So friends, now let us start with the next question, that is question number 2. ये है estimated cost sheet वाला, right? Question 2. Electronics Limited furnished the following information for 10,000 CTV tubes manufactured during the year 2020. कंपनी का नाम Electronics Limited, प्रोडक्ट का नाम CTV ट्यूब्स, मैन्युफैक्चर 10,000 CTV ट्यूब्स, मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारा 10,000 है ड्यूरिंग द ईयर 2020. मटेरियल कॉस्ट 90,000, wages 60,000, power and consumable stores 12,000. Material cost 90,000 will come under raw material consumed. Direct wages 60,000 will come under direct wages. Power and consumable stores 12,000, ये बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा. फैक्ट्री indirect wages 15,000, this is also factory overheads. Lighting of factory 5,500, this is again factory overheads. Depreciation of plant and machinery 3,000, again factory overheads. Clerical salaries and management expenses 33,500, ये है of course administration overheads. अब administration overheads related to production है या general? Come on, you tell me. Clerical salaries and management expenses है, clerical है, not related to production of course, तो ये होगा general. Selling expenses 5,500, this will come under selling and distribution overheads. Plant repairs and maintenance 9,500, ये बनेगा फिर से factory overheads. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कितने हैं? पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, 5 फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एक एडमिन ओवरहेड्स है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है. द नेट सेलिंग प्राइस was 31.6 per unit sold, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है. एंड ऑल यूनिट्स वर सोल्ड, all units were sold. भाई बनाए कितने units थे? 10,000. all units were sold means there is no opening stock, no closing stock, all units are sold, sales quantity is 10,000. correct? फिर नीचे का पैराग्राफ हम अभी नहीं पढ़ेंगे. You are required to prepare cost sheet for the year 2020 showing various elements of cost per unit, and वो बी पार्ट बाद में देखेंगे. तो इधर तुमको पूछा है कॉस्ट शीट फॉर 2020 एंड यू हैव टू शो कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो. तो लेट्स स्टार्ट. Question 2. Write the name of the company. Electronics Limited. Cost sheet for CTV tubes for the year 2020. Production quantity, sales quantity, ये दोनों भी 10,000 यूनिट्स हैं, राइट, सिंस देर इज नो स्टॉक. चलो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं. पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम एंड कॉस्ट पर यूनिट. इसमें ए पार्ट डायरेक्ट कॉस्ट. Under direct cost, the first thing that we write is, yes friends, we write raw material consumed.
which is clearly given to us, 90,000. Second, direct wages, 60,000. There is no direct expense, तो हमें मिलेगा prime cost. Come on, get the total. It's 1,50,000. Then we write overheads, that is indirect cost. उसमें जो हमारा पहला ओवरहेड्स कॉस्ट शीट वाइज हमारा थर्ड कॉस्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने गिने थे, टोटल 5 है. वी विल लिस्ट द नेम वन बाय वन, राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम एंड देन टेक द टोटल इन द आउटर कॉलम. सबसे पहले है पावर एंड कंज्यूमेबल्स, $12,000. Factory indirect wages, 15,000. Lighting of factory, 5,500. Depreciation of plant, 3,000. Plant repairs and maintenance, 9,500. 5 हो गए. Please take the total in the outer column. कितना आता है? $45,000. ये बन गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000. वी टेक द टोटल, वी गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. और इधर WIP का स्टॉक नहीं है, तो जो तुम्हारा ग्रॉस होगा वही तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट माना जाएगा. सो लेट्स राइट हियर नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1,95,000. नेट फैक्ट्री के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो भी नहीं है. Right, there is no research and development, there is no quality cost, there is no sale of scrap, right, there is no primary packing cost. तो यही बन जाएगा cost of goods sold, sorry, cost of production. फिर होता है add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods. यार वो भी तो नहीं है, तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. रियली सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. $1,95,000. इसके बाद हम लेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, यहां पर एक ही है, यू नो इट, दैट इज क्लरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. चलो लिख देते हैं. अमाउंट इज 33,500, राइट. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 5,500, and then we are done. We get cost of sales. We will add profit
to get sales. चलो, tell me the totals. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? $2,34,000. Sales is selling price is given to us which is 31.6. ये एक यूनिट का है, हमने 10,000 यूनिट्स बेचे हैं, so it will be 31.6 into 10,000, 3,16,000. What will be the profit amount? 82,000. So friends, we have written all the amounts given to us and we have made cost sheet for the year 2020. Cost per unit column calculate करना बाकी है, तो let's do it. Sales units, production units दोनों भी 10,000 है. So accordingly, what will be the material cost? 90,000 for 10,000 will be 9 per unit. Wages will be 6 per unit. Prime cost 15. Factory overheads 4.5. Net factory cost 19.5. Admin overheads will be 3.35. Selling expense 0.55. Cost of sales will be 23.4. Profit will be 8.2. And this is how we get the selling price of 31.6. I am sure तुमको ये 2020 के cost sheet में कोई doubt नहीं होगा. Have a look at it once. और in case तुमने नहीं लिखा है and you want screenshot, please take it. 2 पार्ट में ले लो. This would be a first part और ये second part. अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर. जी हाँ, क्वेश्चन 2 खत्म नहीं हुआ है. We have left one paragraph and there is B part of the question as well. Let's read it. As from 1st January 2021, the selling price is reduced to 31. पहले हम 31.6 में बेचे थे, अब selling price होगा 31. It is estimated that production could be increased in 2021 by 50% due to spare capacity. हम कितना बनाते थे पहले? 10,000. अब 50% से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 15,000. Yes, in the next year, we are going to make 15,000 units. Rates of materials and wages will increase by 10%. B part, you are required to prepare estimated cost sheet and profit for 2021, assuming that 15,000 units will be produced and sold during the year, and factory overheads will be recovered as a percentage of wages and office and selling expenses as a percentage of works cost. ये कुछ नया है, हम समझेंगे. तो बेटा यहाँ पर जो कॉस्ट है 2021 में सब में चेंजेस आने वाला है. ऊपर लिखा है your material cost will increase, your wages cost will increase, and here factory overheads will be recovered as a percentage of wages, office and selling expense as a percentage of works cost. तो ये सारे जो statements है हमको इसका अच्छे से interpretation करना होगा और हमें estimated cost sheet for 2021 बनाना होगा. तो चलो format तो बनाते पहले. Give the heading estimated cost sheet for the year
2021 प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी हमारा होगा 15,000 यूनिट्स। ओके, बनाओ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स रुपीस कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर इनर कॉलम की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन स्किप दैट। So ready with the format? We start with direct cost. इसमें आएगा सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये कितना आएगा जरा सोचो। सो वी लुक एट द डेटा ऑफ द ईयर 2020। इसमें मटेरियल कॉस्ट था 90,000, एक यूनिट का 9 रुपया। हमने 10,000 यूनिट्स बनाए, राइट? आई रिपीट, 10,000 यूनिट्स बनाए, 9 रुपया एक यूनिट का था, 90,000 वॉज द टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो जब अगर मैं 15,000 यूनिट्स बनाती हूं, 15,000 यूनिट्स बनाती हूं तो मेरा कितना खर्चा होगा? साथ ही में क्वेश्चन में दिया है कि माई मटीरियल कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, रेट्स ऑफ मटीरियल गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%। तो कितना होगा? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मटीरियल का खर्चा 10% से बढ़ने वाला है। तो यार सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या 90,000 था, 10% से बढ़ेगा तो 99,000 होगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों बताती हूं। चलो एक मिनट के लिए भूल जाओ कि कोई इंक्रीज दिया है, forget that there is 10% इंक्रीज, भूल जाओ। जस्ट जो पास्ट प्रीवियस ईयर का डेटा है उसी पर फोकस करो। वहां देखो 10,000 यूनिट्स बनाए, 90,000 का खर्चा था। अगर 15,000 यूनिट्स बनाऊंगी तो यार मटेरियल का खर्चा तो वैसे भी बढ़ने वाला है। अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो मटेरियल का खर्चा तो बढ़ेगा ही। एक यूनिट का 9 रुपया था, राइट? तो 15,000 यूनिट्स बनाऊंगी तो 9 रुपया तो वैसे भी होने वाला है। तो 1,35,000 is anyways going to be my cost, right? Please do not write, समझ लो पहले। तो 9 पर यूनिट था, मैं 15,000 बनाऊंगी तो 1,35,000 वैसे भी मेरा कॉस्ट होने वाला है, राइट? और अभी ये जो कॉस्ट मैंने निकाला है वो है assuming the prices of previous year, माने 9 रुपया था और अभी भी 9 रुपया ही है, राइट? ऐसा मैंने सोचा, पर एक्चुअल में तो ऐसा हुआ नहीं। Material prices have gone up by 10%, तो 1,35,000 तो होगा ही। Over and above that there will be increase by 10%, तो कितना होगा? It will be 1,48,500. It will be 1,48,500, right? तो अगर मुझे इसे इन शॉर्ट में समझाना हो तो मैं हमेशा ऐसे बोलूंगी कि जब भी चेंज दिया है, कॉस्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जब भी चेंज दिया है तो चेंज क्या है? सोचो, वो वेरिएबल कॉस्ट चेंज है या फिक्स कॉस्ट चेंज है? लेट्स राइट दिस।
इफ देयर इज चेंज इन कॉस्ट, तो जरा सोचो, वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है या चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट? अगर वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है, सो you have to alter, or rather you have to change cost per unit. You have to alter the cost per unit. और अगर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज है, जैसे मैं बोलती हूँ रेंट 2020 का 1 लाख था, अभी 10% बढ़ने वाला है, तो 1 लाख प्लस 10% हो जाएगा, राइट? तो हम टोटल ही चेंज कर देते हैं, वी ऑल्टर टोटल amount, right? I repeat, अगर चेंज इन कॉस्ट है तो चेक करो पहले वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट। अगर वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है तो ऑल्टर कॉस्ट पर यूनिट, अगर वो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है तो ऑल्टर द टोटल अमाउंट। तो वैसे मटीरियल कॉस्ट क्या है? मटीरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ओके, तो कितना चेंज है? 9 था, 10% बढ़ गया, तो इट विल बी 9.9, इट विल बी 9.9, करेक्ट? 9.9 एक यूनिट का अगर 15,000 यूनिट्स बनाए तो 148,500 विल बी योर मटीरियल कॉस्ट। कम ऑन, जस्ट लाइक दैट टेल मी व्हाट विल बी फॉर डायरेक्ट लेबर। प्रीवियस ईयर का लेबर कॉस्ट था 6 एंड दिस रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%, यानी 6.6 हो जाएगा पर यूनिट। 6.6 15,000 का कितना? इट विल बी 99,000। कम ऑन, टेक द टोटल, and get the prime cost. $247,500. $16.5। तो ये हुआ हमारा प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा, इसके बारे में कोई इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं दिया है, पर मेंशन किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, राइट? इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन रेट। जब हम एब्जॉर्प्शन चैप्टर में जाएंगे तो इसका रियल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। फिलहाल मान लो कि एब्जॉर्प्शन रेट है। हाँ, सो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट 1। एब्जॉर्प्शन रेट्स। हम पहला एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स का, और उसके लिए बोला है इट इज रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी परसेंटेज ऑफ वेजेस। सो व्हाट विल बी दैट परसेंट? तो वी विल वर्क आउट लाइक दिस, फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंट divided by direct wages amount into 100। ऑब्वियसली हम 2020 का डेटा देखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था? 45,000। लेबर कितना था? 60,000। सो 45,000 अपॉन 60,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज आता है?
75%, राइट? तो इसका मतलब मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा, it will be 75% of the amount of wages. My factory overheads will be 75% of the amount of wages, right? तो चलो कॉस्ट शीट में जाते हैं और देखते हैं हमारा वेजेस कितना है 2021 का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 2021 का कितना होगा? It will be 75% of 99,000, क्योंकि वेजेस कितना है 99,000 2021 का। You get how much? 74,250 और एक यूनिट का निकालो, डिवाइड बाय 15,000 करके, यू गेट 4.95। ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। दिस इज नथिंग बट योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और यू कैन कॉल इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन कॉल इट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? क्योंकि इधर फिनिश गुड्स का स्टॉक भी नहीं है। प्लीज गेट द टोटल। $3,21,750, $21.45। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद लेने हमें क्लेरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड्स, राइट? ये दोनों के लिए क्या बोला है? ये दोनों के लिए बोला है एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, राइट? सो वी गो बैक टू दैट एब्जॉर्प्शन रेट वाला वर्किंग नोट। We are calculating absorption rate for admin overheads and selling overheads together. तुम चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। So these overheads, it is percentage of works cost. That is factory cost. So how do we calculate this percentage? It will be admin overheads plus selling overheads together divided by works cost into 100. कितना था 2020 का admin overheads? It was 33,500. Selling overheads 5,500. Your factory cost was 1,95,000 into 100. You get 20%. तो दोनों मिलाकर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। Therefore, office and admin overheads and selling overheads together is 20% of factory cost. राइट? 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फिर से चले जाओ तुम्हारे कॉस्ट शीट में, go back to your cost sheet and calculate the amount of admin overheads and selling overheads. Admin overheads, selling overheads, together it is 20% of factory cost, that is 321,750. ये है तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट?
64,350. Yes, friends, 64,350. So what is your cost of sales? $386,100. 25.74. Cost of sales मिल गया. We add profit to get the figure of sales. Friends, we already know the selling price. Start में ही दिया था. In 21, the selling price is reduced to 31 per unit. तो हम यहाँ पर 31 लेंगे. 31 into 15,000 units sold, we get 4,65,000. Calculate the amount of profit, 78,900, which amounts to 5.26 per unit. So this is how we have made the estimated cost sheet. बेटा इसमें cost sheet बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट इसमें जो estimated data को कैलकुलेट करना है, जो इंटरप्रीट करना है, जो चेंजेस दिए हैं उस पर फोकस करना, बिकॉज दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. तो मैं उसे एक और बार रिपीट करना चाहूंगी. सबसे पहले तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट दे रखा था उसमें चेंजेस था. बोला था 10% इंक्रीज है. तो अगर चेंज दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे चेंज इन कॉस्ट है तो वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है. अगर वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है तो वी विल ऑल्टर कॉस्ट पर यूनिट, और अगर वो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है वी विल चेंज द टोटल अमाउंट. जैसे इधर मटेरियल और लेबर दोनों भी वेरिएबल था तो 9 का 9.9 हुआ और 6 का 6.6 हुआ. ओके, देन बात करते हैं ओवरहेड्स की. ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं दिया था, बट बोला था कि these overheads will be recovered as percentage of something. तो we need to calculate those percentages. अब obviously ये जो percentages निकाले हमने, हमारे लिए कोई और बेस नहीं बट 2020 ही बेस होगा. तो always remember this, absorption rate, it will be calculated using budgeted data. It will be calculated using budgeted data. हमारे पास कोई डेटा नहीं है, so we write we have used your 2020's data. We have used 2020's data. एब्जॉर्प्शन रेट हमें बजटेड डेटा यूज करना है, पर डेटा तो कोई दिया नहीं है एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने 2020 का था वही माना. इसको ही वही बजटेड होगा. जैसे एक बात समझो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना हुआ था लास्ट ईयर, 74,250. अब ये साल कितना होगा, अरे ये साल कितना होगा वो तो पता नहीं है, तो हम मानेंगे कि इसके आजू बाजू ही होगा ना, राइट. 74,250 हुआ था, समवेयर नियर बाय प्लस माइनस, राइट. तो जो हमारा 2020 का डेटा है वही बेस बन जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए फॉर द ईयर 2021. तो बिकॉज बजटेड डेटा स्पेसिफिकली इज नॉट गिवन, वी यूज द डेटा ऑफ 2020. ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाला एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, admin and selling nikala as a percentage of works cost, that is factory cost, and this is how we make the estimated cost sheet. Estimate cost sheet बनाने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि changes in cost को कैसे टैकल करते हैं, और साथ ही में absorption rate जो भी percentage दिया है वो कैसे calculate करते हैं, right? This is really very important. तो भाई हम आगे बढ़ रहे हैं. हमने 2 sums किया अब तक, बट दोनों सम्स काफी हटके थे. क्वेश्चन नंबर 1 पूरा रिवर्स गए थे. क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमने चेंजेस और एब्जॉर्प्शन रेट्स के बारे में सीखा. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.
अब ये भी थोड़ा अलग सम है. You have mentioned, right? This is based on behavior of cost. This is based on behavior of cost. Let's read it. Question काफी छोटा है, पर दिखावे पे मत जाओ. Looks are always deceptive. A factory manufactures uniform type of article and has a capacity of 4,000 units per week. एक फैक्ट्री एक टाइप का आर्टिकल एक हफ्ते में 4,000 बना सकती है. कैपेसिटी 4,000 की है. The following information shows different elements of cost for 3 consecutive weeks when output has changed every week. 3 हफ्ते का डेटा दिया है और हर हफ्ते हमने पूरा 4,000 यूज नहीं किया, तो कितना बनाया? एक हफ्ते में 2,000 बनाया, दूसरे हफ्ते में 2,800, थर्ड वीक में 3,700. तो दिस इज द यूनिट्स दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस इन द पास्ट 3 वीक्स. और ये यूनिट्स के लिए ये मटेरियल कॉस्ट है. लेबर कॉस्ट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया है. आगे लिखा है द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 5,000 यूनिट्स and it desires a profit of 16/2 on the selling price. Find out the price at which each unit should be sold. मतलब कंपनी को ऑर्डर मिला है 5,000 यूनिट्स का, उस पर प्रॉफिट चार्ज करना है 16/2 ऑन सेलिंग प्राइस. कितने में बेचना चाहिए? दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? ऑब्वियसली हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा सेल्स, राइट? तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा? इफ यू रीड द क्वेश्चन, भाई 3 ही कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिस कॉस्ट विल बी इनकर्ड फॉर द 5,000 यूनिट्स दैट वी मेक, राइट? पर ये जो कॉस्ट दे रखा है वो 3 हफ्ते के लिए 2,000, 2,800, 3,700 यूनिट्स के लिए दे रखा है. हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ 5,000, तो कैसे निकाले? वी विल हैव टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ दिस कॉस्ट. कैसे? सबसे पहले देखो मटेरियल. 2,000 यूनिट्स बनाए तो 12,000 का खर्चा, 2,800 बनाए तो 16,800 का खर्चा, 3,700 बनाए तो 22,500 का खर्चा. यार बताओ ये मटेरियल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? ये मटेरियल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? तुम बोलोगे बिहेवियर क्या है, हमको नहीं पता, कैसे क्या है, कैसे पहचानने का? तो अगर तुम ऐसे स्टेज पे हो तो यार गुस्सा आएगा मेरे को, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात. ये सब कुछ मैंने सिखाया है तुमको इंट्रोडक्शन चैप्टर में. मैंने सिखाया है तुमको इंट्रोडक्शन चैप्टर में, राइट? स्टेप्स भी लिखवाए हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर. उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इज इट फिक्स्ड. तो चलो मैं लिखती हूं इधर, ये वर्किंग नोट एग्जाम में नहीं बनाना है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. This is for your understanding. Week 1, 2, 3. बोलो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? We made 2,000 units in week 1, 2,800 units in week 2, 3,700 units in week 3. और इसके लिए मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ? 12,000, 16,800, 22,200. ये हमारा मटेरियल कॉस्ट हुआ. अब ऑब्वियसली देखने से पता चलता है कि ये फिक्स तो नहीं है, बिकॉज टोटल अमाउंट इज डिफरेंट. अगर तीनों जगह टोटल सेम होता तो वो फिक्स्ड होता, ये फिक्स तो नहीं है. तो सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज इट वेरिएबल? क्या ये वेरिएबल है? तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट चेक करना होगा. वीक 1 में 2,000 के लिए 12,000 कॉस्ट है, सो पर यूनिट कम्स टू 6. वीक 2 में 16,800 कॉस्ट है, पर यूनिट कम्स टू 6. वीक 3 में 22,200 डिवाइड बाय 3,700 कम्स टू 6. यार तीनों में कॉस्ट पर यूनिट 6 है, कांस्टेंट है. तो डेफिनेटली इट शोज दैट द बिहेवियर ऑफ दिस कॉस्ट इज वेरिएबल, राइट? यू मस्ट नोट दिस. अगर तुमको ओरली पता चल जाता है तो नथिंग लाइक दिस. एग्जाम में तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है. यू डोंट हैव टू राइट दिस.
So please write down the conclusion. Since cost per unit is constant, since cost per unit is constant, material is variable cost. Material is variable cost and its cost per unit is 6. वीक 1, वीक 2, वीक 3 हमने जो भी बनाया हर एक के लिए 6 पर यूनिट हुआ, तो जब आगे भी 5000 बनाएंगे उसके लिए भी 6 पर यूनिट ही होगा. Similarly, let's work it out for labor. I hope you have noted this. Working note 2 for labor. लेबर भी देखो 6000, 8411, 100, ये भी फिक्स नहीं दिखता है, तो हम इसका पर यूनिट चेक करेंगे टू नो वेदर इट्स वेरिएबल और नॉट. लेट्स राइट इट. मैंने ना उल्टा लिख दिया. इधर यूनिट्स लिखो 2000, 2800, 3700. Labor cost is 6000, 8400, 11100. Come on, calculate cost per unit. Three. Again 3. यार तीनों में जगह 3 आ रहा है. So what do you conclude? Just like material, this is also variable cost, right? So since cost per unit is constant, labor is variable cost and its cost per unit is 3. वीक 1, वीक 2, वीक 3 हमने जो भी बनाया सबके लिए 3 पर यूनिट हुआ, तो आगे भी जब 5000 बनाएंगे उसके लिए भी 3 पर यूनिट ही होगा. नाउ मटीरियल हो गया, लेबर हो गया. अब तीसरा खर्चा, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. चलो इसका क्या सीन है देखते हैं. वर्किंग नोट 3. Factory overheads. Factory overheads. डेफिनेटली फिक्स तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सब जगह अमाउंट्स अलग अलग हैं. तो क्या ये वेरिएबल है? लेट्स चेक इट आउट. Units 2000, 2800, 3700 and factory overheads 12,500, 16,500, 21,000. What is the cost per unit that you get? 6.25, 5.89, 5.67 समथिंग. क्या कंक्लूड करेंगे बोलो? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? नॉट एट ऑल.
तो ये ना तो ये फिक्स्ड है ना तो ये वेरिएबल है, तो मैं क्या बोलूं? सिंस it is neither fixed nor variable, it is semi variable. करेक्ट फ्रेंड्स? ये फिक्स भी नहीं वेरिएबल भी नहीं है, तो ये सेमी वेरिएबल हुआ। अब अगर ये सेमी वेरिएबल है तो मुझे ये जानना है कि इसमें से कितना हिस्सा फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। सी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल होता है, तो कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट। बाइफिकेशन करना होगा, गिव द हेडिंग बाइफिकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके 3 स्टेप्स थे अगर तुमको याद हो तो। स्टेप 1, वी फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। We find out variable cost per unit, which is difference in cost divided by difference in units. Take any 2 weeks into consideration. Let's take week 1 to 16,500 minus 12,500 divided by 2,800 minus 2,000. 4,000 divided by 800. What do you get? 5 per unit. Right? तो ये हुआ मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप 2, वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने के बाद लेट अस फाइंड आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी 1 वीक। I'm considering week 1. I've made 2,000 units in week 1 into 5 per unit. It gives me total variable cost of 10,000 rupees. Aakhri step, fixed cost. The total cost that I've incurred in week 1 is how much? It is 12,500. उसमें से मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10,000 एज आई हैव गॉट इन स्टेप 2। तो जो बैलेंस बचा वो होगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, विच इज 2,500। सो दिस इज हाउ वी बाइफिकेट। हमें मिल गया फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 2,500 and variable cost per unit which is 5 per unit, and this is your factory overheads. Factory overheads partly variable है partly fixed है। variable part है 5 per unit और fixed है 2,500 for the week, right? तो अब हमें तीनों भी कॉस्ट का बिहेवियर समझ गया, right? तुम जो भी यूनिट्स बनाओगे उसके लिए मटीरियल कॉस्ट होगा 6 per unit, लेबर कॉस्ट होगा 3 पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा वेरिएबल फिक्स दोनों, वेरिएबल होगा 5 पर यूनिट और फिक्स्ड होगा 2,500। ठीक है, प्लीज नोट दिस वर्किंग नोट 3 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स दैट दे हैव आस्क्ड। ओके, चलो, गिव द हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस। हम सेल्स निकालेंगे, एंडिंग में 5,000 से डिवाइड करेंगे टू गेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। Okay, this would be our approach. Particulars, rupees, rupees.
कम ऑन फ्रेंड्स, टेल मी। सबसे पहले हमारा होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो यहाँ पर 3 ही कॉस्ट है तो हम पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट इज 6 पर यूनिट, तो 6 into the 5,000 units that we have made, 30,000, right? Next is direct labor. Which is 3 per unit, right? 18,000. सॉरी 15,000 आएगा। फिर बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की। इसमें वेरिएबल हिस्सा, the variable part that we have worked out is how much friends? It is 5 per unit. So 5,000 units that we make into 5, 25,000, करेक्ट। फिक्स्ड कितना होगा? फिक्स्ड कितना होगा? आई एम श्योर सब लोग बोलेंगे 2,500। यार वो तो है, बट बात ऐसी है ना कि the units that we are going to make is 5,000 units, है ना? और हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है एक वीक की इज लिमिटेड टू 4,000 ओनली। हम एक हफ्ते में सिर्फ 4,000 यूनिट्स ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम जाएगा? ऑब्वियसली मोर देन अ वीक, obviously more than a week. So my fixed cost will be definitely there for week 1, 2,500. But my production is not completed in week 1, it goes to week 2 as well. पर week 2 का कितना? week 2 का कितना? तो अब इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, अच्छे से समझना। वर्किंग नोट 4 फॉर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर वीक 2। ये वीक 2 के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है? समझो, the total units that we are going to make is 5,000, right? हम 5,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। अब वो प्रोडक्शन किस तरह होगा? वीक 1 में हम 4,000 यूनिट्स बना लेंगे। वीक 1 में हम 4,000 यूनिट्स बना लेंगे क्योंकि उतना कैपेसिटी है, पूरा यूज कर लेंगे। फिर वीक 2 में हम बैलेंस प्रोडक्शन करेंगे। बैलेंस कितना होता है? 1,000 यूनिट्स। तो इस तरह हमारा प्रोडक्शन होगा 5,000 का। पहले हफ्ते 4,000, दूसरे हफ्ते बैलेंस 1,000। अब वीक 1 का तो नो डाउट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, योर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी 2,500 रुपीज विदाउट एनी डाउट। बट वीक 2 का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा? क्या पूरा 2,500 होगा ये 1,000 के लिए, या फिर पार्शियली लेना पड़ेगा? क्योंकि हम 4,000 जो कैपेसिटी है हर हफ्ते का, उसमें से 1,000 ही तो यूज कर रहे हैं। क्या होगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू अज्यूम। सोचो, सेकेंड वीक का जरा सोचो। सेकेंड वीक की कैपेसिटी 4,000 है, हर वीक की कैपेसिटी 4,000 है, सेकेंड वीक की कैपेसिटी भी 4,000 है। उस 4,000 में से मैं 1,000 यूज कर रही हूं, राइट? और वो 3,000 कैपेसिटी का क्या होता है? मान लो कोई और ऑर्डर मिलता ही नहीं है, देयर इज नो अदर ऑर्डर। सो इफ 1,000 यूनिट्स is produced
in week 2 and there is no other order, कोई और काम मिला ही नहीं, कोई और काम मिला ही नहीं, तो जो वीक 2 का 2500 है पूरा का पूरा खर्चा इसी में चार्ज कर देना पड़ेगा. सो इन दैट केस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स will be fully charged to this 1000 units. बराबर पूरा 2500 खर्चा ये 1000 को ही बेयर करना पड़ेगा. फिर से एक बार सिचुएशन बता रही हूं. वीक 2 चल रहा है, वीक 2 का कैपेसिटी 4000 है, हमने 1000 बनाया, बाकी का कैपेसिटी के लिए कोई ऑर्डर मिला ही नहीं, तो सिर्फ ये 1000 ही बनाया और कुछ किया ही नहीं, तो जो भी खर्चा है वीक 2 का पूरा ये 1000 से ही रिकवर कर लेंगे. दैट इज 2500. पर सिचुएशन अगर कुछ और हो, जैसे इफ 1000 यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड इन वीक 2, जैसे हम बना रहे हैं, एंड देयर इज अदर ऑर्डर, दूसरा कोई और 3000 का काम मिला, 4000 कैपेसिटी है, 1000 हमारे यूनिट्स, 3000 का कोई और कैपेसिटी मिला, तो हम फिक्स कॉस्ट रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, राइट. Therefore, in this case, fixed factory overheads that we will take is 2500 into 1000 divided by 4000 units, right. ये ऑर्डर 4000 में से 1000 यूनिट यूज कर रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी उसी प्रपोर्शन में लिया जाएगा. देख लो कितना आता है, 625 रुपीज. यानी वीक 2 में सिर्फ हमारा ही ऑर्डर है तो पूरा खर्चा हमारा, अरे हमारा नहीं दूसरा भी ऑर्डर है तो हमको सिर्फ पार्शियल लेना होगा, विच इज 625 रुपीज. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस इन वीक 2. ओके, तो हम जो सेलिंग प्राइस है वो एक अजम्पशन पर निकालेंगे. चलो लेट्स अज्यूम दैट देयर इज नो अदर ऑर्डर, कोई और ऑर्डर है ही नहीं. स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5000 units, assuming that there is no other order in week 2, कोई और ऑर्डर है ही नहीं. क्या हम दूसरा assumption ले सकते हैं? बिल्कुल. क्या ICI करेक्ट देगा? जी हाँ, राइट. So we take full 2500 and we get 5000, right? ये 2500 अंदर लिखना था. अगर तुमने बाहर लिखा है तो भी चलेगा, फिर टोटल मत लिखना. दैट्स इट. 5000 पर यूनिट कितना आ जाता है भाई? 1 रुपया. दैट्स इट. सारे खर्चे मिल गए. गेट द टोटल कॉस्ट. कितना है टोटल कॉस्ट? 75,000 इज द टोटल कॉस्ट. 15 पर यूनिट आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट. एड प्रॉफिट टू गेट द सेल्स. प्रॉफिट बोला है कितना? इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन. 16 2/3 ऑन सेलिंग प्राइस. यानी अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट विल बी 16 2/3. तो कॉस्ट विल बी हाउ मच? 16 2/3 मतलब 16.6666. 100 माइनस 16.6666 करो, यू गेट 83 1/3.
राइट, यू गेट 83 1/3 एज योर कॉस्ट. हम रिवर्स जा रहे हैं. इफ योर सेल्स इज 100, प्रॉफिट विल बी 16 2/3, कॉस्ट विल बी 83 1/3. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम मुझे सेल्स फिगर दे दो, प्रॉफिट फिगर दे दो. You get 90,000. Profit will be 15,000. Per unit details भी निकालना है इधर. 18 per unit. Profit will be 3 per unit. That's it. तो ये हमने कर दिया calculation of selling price per unit, which is 18. I hope you have understood this, friends. चलो इसे नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो. स्टार्टिंग से सम दिखा देती हूँ एक बार. वर्किंग नोट 1 and 2. पहले हमने मटेरियल और लेबर का कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया. फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का एनालिसिस किया तो पता चला वो सेमी वेरिएबल है, तो फिर उसका ब्रेकअप किया, पता चला वेरिएबल 5 है और फिक्स 2500 है. और फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला. यहां पर जो वीक 2 है, राइट, उसका फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए ये वर्किंग नोट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो एक और हटके सम हमने किया है कॉस्ट शीट में भाई, है ना. कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1 रिवर्स वाला था. क्वेश्चन नंबर 2 एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किया. क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बिहेवियर बेस्ड था. अब आगे क्या, अब आगे है 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट. राइट फ्रेंड्स, 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट एक ही साथ हम बनाएंगे. 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट कैसे, देखते हैं. So come on, let's go to the next question. Question 4. ये है 2 प्रोडक्ट्स का कॉस्ट शीट. अ वंडरफुल सम, ये एग्जाम में आ सकता है. चलो रीड करते हैं. क्वेश्चन 4. X and Y Shoes Polish Company Limited manufactures black and brown polish in one standard size of tin, retailing at 1.08 and 1.2 per unit. एक्स एंड वाई शू पॉलिश कंपनी, ये कंपनी का नाम है. ये कंपनी 2 टाइप के पॉलिश बनाती है, ब्लैक पॉलिश एंड ब्राउन पॉलिश. बट जब बेचती है तो डब्बा जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज का होता है. ठीक है. रिटेलिंग एट, यानी ये जो टिन में पॉलिश भर के बेचा जाता है उसका सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस है. फॉर ब्लैक पॉलिश इट इज 1.08 एंड फॉर ब्राउन पॉलिश इट इज 1.2. ये है सेलिंग प्राइस. ओके, आगे लिखा है फॉलोइंग डेटा आर सप्लाइड टू यू. पॉलिश बनाने के लिए पहले तो मटेरियल चाहिए पॉलिश विच कॉस्ट 7,38,000, और फिर उस पॉलिश को डब्बे में भरने के लिए टिन्स चाहिए. टिन्स इज नथिंग बट द डब्बा, राइट, 2,88,000. अभी ये जो 7,38,000 2,88,000 दिया है वो कौन से पॉलिश का है, ब्लैक पॉलिश का है कि ब्राउन पॉलिश का है, वो तो नहीं दिया. तो क्या माने इसको, ये है टोटल, यानी ब्लैक का प्लस ब्राउन का. इनफैक्ट सारे कॉस्ट ब्लैक ब्राउन दोनों के टोटल दिया है. पर जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो अलग अलग बेचते हैं ना, तो कॉस्ट शीट भी इन दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी अलग अलग लाना पड़ेगा. वो लोग ने दिया है टोटल, कितना ब्राउन का है कितना ब्लैक का है ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा. लेट्स रीड फर्दर. वेजेस 244,800, अगेन टोटल ऑफ बोथ. प्रोडक्शन ओवरहेड्स 367,200, एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स 122,400, दोनों का टोटल कंपनी का दे रखा है. आगे सेल्स फॉर द ईयर वर ब्लैक 14,40,000 टिन्स, हमने 14,40,000 टिन्स हमने बेचे ब्लैक पॉलिश के. 6 लाख टिन्स ऑफ ब्राउन पॉलिश वी हैव सोल्ड. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये यूनिट्स दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक इज 48,000, ब्राउन 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक इज 1,08,000 एंड ब्राउन 60,000. हमने इतने यूनिट्स बेचे हैं.
The opening stock of Black and Brown were valued at its production cost of paise 80.4. Beta paise 80.4 is as good as rupees 0.804. And paise 86.4 per tin is rupees 0.864. So this is the amount given for valuing your opening stock. इसका क्या यूज है हम कॉस्ट शीट में देखेंगे. आगे लिखा है the cost of material for brown polish is 10% higher than that of black and there is no difference in the cost of tin. Wages for brown are 8% higher than that for black. Production overheads are considered to vary with wages. Administrative and selling overheads is absorbed at a uniform rate per tin of polish sold. Prepare statement to show the cost and profit per tin of each polish. तुमको कॉस्ट और प्रॉफिट हर एक पॉलिश का निकालना है पर टिन. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, जस्ट इमेजिन अ रेगुलर कॉस्ट शीट. हम पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, देन वी विल राइट प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी. तो चलो बात करते हैं उसी की. हमको सेल्स क्वांटिटी दिया है यहां पर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है, पर क्या हमको प्रोडक्शन क्वांटिटी पता है? तो चलो स्टेप वाइज जाते हैं. हम कॉस्ट शीट बनाने का विजुअलाइज कर रहे हैं तो पता चला प्रोडक्शन क्वांटिटी नहीं है. तो लेट्स मेक दैट फर्स्ट. गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4. वर्किंग नोट 1. Calculation of production quantity. Calculation of production quantity. कॉलमनर फॉर्म में वर्किंग करेंगे. ब्लैक पॉलिश, brown polish. सेल्स क्वांटिटी कितना है? 14,40,000 tins and 6 lakh tins. Minus opening stock 48,000, 1,60,000. Add closing stock 1,08,000 and 60,000. We get the production quantity. Come on friends, tell me the figure of production quantity. What do you get? 14,40,000 minus 48,000 plus 1,08,000, you get 15 lakhs as your sales quantity. 6 lakhs minus 1,60,000 plus 60,000, you get 5 lakhs. This is your production quantity. तो हमें मिल गया प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों भी पॉलिश का. जिसको लॉजिक नहीं पता कि क्यों माइनस किया ओपनिंग स्टॉक, क्यों ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक, उनके लिए देखो, मुझे 14,40,000 बेचना है ब्लैक पॉलिश का. अगर 14,40,000 बेचना है तो मैं कितना प्रोड्यूस करूं? मेरे को प्रोडक्शन क्वांटिटी पता करना है. 14,40,000 बेचने के लिए मेरे पास उतना होना भी तो चाहिए. बट 14,40,000 बेचने के लिए मेरे पास ना 48,000 पहले का पड़ा है. बिकॉज आई ऑलरेडी हैव 48,000 विथ मी इन द ओपनिंग स्टॉक. में उतना कम बनाऊंगी. आई विल सब्ट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक. बट कंपनी को ना ईयर एंड में कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना है. कितना? 1,08,000. तो आई विल मैन्युफैक्चर दैट मच मोर. राइट, स्टॉक मेंटेन करने के लिए मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा. हेंस आई ऐड द क्लोजिंग स्टॉक.
right? So this is why we subtract opening stock and we add the closing stock, and I get the production quantity of 15 lakhs. Same applies to brown polish. अब हमें production quantity मिल गया, तो let's visualize the cost sheet again. कंपनी का नाम लिखेंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी मिल गया. अब जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश दोनों का सारा कॉस्ट अलग अलग चाहिए. अरे बट मेरे पास ना दोनों का टोटल ही है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. आई नीड टू बाइफिकेट, आई नीड टू बाइफिकेट. तो हाउ डू आई बाइफिकेट? आई विल शो यू हाउ. गिव द हेडिंग वर्किंग नोट 2. Bifurcation of cost. Bifurcation of cost कैसे करेंगे? मैं एक समझाऊंगी मटेरियल्स का. आई एम श्योर बाकी सब तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो. पर्टिकुलर्स, ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश, ये दो कॉलम्स बना लो एंड यू कैन मेक दिस पेज, मेक दिस टेबल फॉर अ पेज. सबसे पहले लेट्स डू द बाइफिकेशन फॉर मटीरियल्स, बट मटीरियल्स दो है, पॉलिश एंड टिन्स. तो पहले हम पॉलिश का लेते हैं, ठीक है. अब बाइफिकेशन के लिए ना वो लोग ने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रखा है. वी हैव टू डू द बाइफिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट. लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक. ब्राउन का 10% ज्यादा है. तो इससे ना कोई भी स्टूडेंट यही सोचता है कि अगर इसका 10 रुपीज है ब्लैक का, तो ब्राउन का 10% हायर मतलब 11. आई रिपीट, ऐसे सोचता है कि अगर ब्लैक का 10 रुपीज है, अज्यूम कर रही हूं नंबर, तो इसका 11 रुपया होगा. कैसे? 10 + 10%. दैट्स इट. ये रेशियो में डिवाइड कर लो 7,38,000 को. अगर ऐसे करोगे तो गलत होगा. बेटा ये सोचना गलत नहीं था कि इसका 10 है, इसका 11 है, पर जो तुमने सोचा है, जब सोचा तुमने एक यूनिट का सोचा कि अगर एक कप ब्लैक पॉलिश का 10 है तो एक कप ब्राउन पॉलिश का 11 होगा. सो व्हाट यू हैव थॉट इज कॉस्ट फॉर अ यूनिट. बट अगर ओवरऑल बेसिस पर देखो तो हम ब्लैक के 15 लाख टिन्स बना रहे हैं, हम ब्राउन के 6 लाख टिन्स बना रहे हैं. कैन यू सी दिस? 6 नहीं, 5 लाख. ब्लैक के 15 लाख, ब्राउन के 5 लाख. तो ओवरऑल कॉस्टिंग देखो तो ऑब्वियसली ब्लैक का ही ज्यादा होना है क्योंकि उसके यूनिट्स ज्यादा है, राइट? तो जो दिया है 10, 11 ये सही है, बट पर यूनिट हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा टोटल प्रोडक्शन यूनिट से. $15 lakhs, 5 lakhs. कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स करने पर तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगा. अगर 15 लाख टिन्स बनाती हूं और अगर 10 लाख कॉस्ट, 10 रुपीज कॉस्ट है, तो आई गेट 150 lakhs एज द टोटल कॉस्ट, और इधर 55 lakhs. करेक्ट? 150 lakhs एंड 55 lakhs. तो मुझे रेशियो क्या मिलता है? इट इज 150:55. I get the ratio 150:55. जो 7,38,000 है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा. आई रिपीट, डू नॉट टेक द रेशियो 10:11. जो तुमने सोचा वो सही सोचा, पर तुमने एक यूनिट का सोचा है, बट जो कॉस्ट दे रखा है वो तो सारे यूनिट्स का कॉस्ट दे रखा है, राइट? तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स टू गेट द टोटल कॉस्ट, एंड वी नीड
total cost ratio for dividing the total cost. तो चलो लिखते हैं मटेरियल पॉलिश कॉस्ट ऑफ 7,38,000 कितना होगा ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए? $7,38,000 into 150 divided by 205. What do you get? 3,78,000 ब्लैक का आएगा, ब्राउन का the balance 1,98,000. कुछ गड़बड़ हुआ है, जस्ट वेट. $7,38,000 divided by 205. You get 5,40,000. $1,98,000. Yes, अब ये सही है. तो ये था पॉलिश का वर्किंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड सिमिलर वर्किंग हैज टू बी डन फॉर वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड्स. कम ऑन, लेट्स डू इट. वेजेस, सॉरी, टिन्स का करते हैं पहले. मटीरियल्स, टिन्स. टिन्स के लिए क्या लिखा है? देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टिन्स. मतलब जिस डब्बे में ब्लैक पॉलिश और ब्राउन पॉलिश को भरते हैं वो डब्बे का प्राइस तो सेम ही है. तो फिर से जो हम सोच रहे हैं दोनों का सेम है, मतलब एक डब्बा ब्लैक का ले लो और एक डब्बा ब्राउन का ले लो, कॉस्ट सेम ही है. अगर ब्लैक का 1 रुपया कॉस्ट है तो ब्राउन का भी 1 रुपया ही कॉस्ट है. देयर इज यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ टिन. बट ओवरऑल बेसिस पर देखो यार, ब्लैक का 15 लाख टिन्स यूज किया है और ब्राउन का 5 लाख टिन्स यूज किया है, तो ओवरऑल कॉस्टिंग तो ब्लैक का ही ज्यादा होगा, राइट? सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स. कम ऑन, वी मल्टीप्लाई दिस बाय 15 lakhs, 5 lakhs. You get the total cost. What is the ratio? 15:5. That is 3:1. So tell me, what is the tins cost for tins cost of total कितना दिया है? 2,88,000. बोलो कितना जाएगा ब्लैक में और कितना ब्राउन में? 2,16,000 and 72,000. इस तरह तुम्हारा 2,88,000 का टोटल खर्चा डिवाइड हो जाएगा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर टिन्स. अब आगे करते जाओ फॉर वेजेस. 244,800 टोटल है. थर्ड कॉस्ट वेजेस. वेजेस के लिए क्या दिया है? इफ यू रीड द इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन आर 8% हायर देन दैट फॉर ब्लैक. यानी अगर मैं ऐसे सोचूं, ब्लैक का अगर 100 है, अज्यूम्ड है, अगर 100 है तो ब्राउन का 8% हायर
यानी 108 हुआ। पर ये जो मैंने सोचा है, फिर से ये सोचा है कॉस्ट पर यूनिट, मुझे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय टोटल यूनिट्स विच इज 15 lakhs एंड 5 lakhs। चलो मल्टीप्लाई करो और टोटल कॉस्ट निकालो। $1,500 lakhs and 540 lakhs. It is 150 is to 54. Correct? Wages कितना है ऑफ रुपीज 244,800 इस रेशियो में। You get 1,80,000 and 64,800। इस तरह वेजेस डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या लिखा है? Production overheads are considered to vary with direct wages. Production overheads are considered to vary with direct wages, मतलब same ratio as wages. तो रेशियो क्या लेंगे? 150 is to 54, same as wages. करेक्ट? तो चलो डिवाइड करो। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 367,200 in this ratio. 367,200 divided by 204 into 150. You get 2,70,000 for black and 97,200 for brown. So this is how we divide production overheads. आगे बढ़ते हैं। आखिरी खर्चा Number 5, admin and selling overheads. Admin and selling overheads. Friends, इसके बारे में क्या दिया है? इसके बारे में लिखा है admin and selling is absorbed at uniform rate per tin of polish sold. मतलब एक टिन का ब्लैक का लो, एक टिन ब्राउन का लो, दोनों का एक यूनिट का एडमिन सेलिंग एक्सपेंस सेम होगा। एंड दिस एक्सपेंस इज इनकर्ड नॉट फॉर प्रोडक्शन क्वांटिटी, इट इज इनकर्ड फॉर द यूनिट्स दैट वी हैव सोल्ड, राइट? तो अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो इसका 1 है तो इसका भी 1 है, बट हियर I always multiplied by production quantity. मटीरियल में, वेजेस में, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, क्योंकि वो खर्चे प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए थे। पर ये एडमिन एंड सेलिंग जो है वो सेल्स यूनिट्स के लिए है। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय सेल्स क्वांटिटी विच इज 14,40,000 टिन्स ऑफ ब्लैक एंड 6 lakh टिन्स फॉर ब्राउन, राइट? तो बोलो कितना टोटल कॉस्ट आता है? 14,40,000, 6 lakhs. Ratio is 144 is to 60. So कितना कॉस्ट है? 120 to 400. डिवाइड कर लो।
86,400 and 36,000. That's all about bifurcation. I hope you have understood this. तो चलो इसको वर्किंग नोट को एक और बार देख लेते हैं. Material cost polish. Material cost polish 5,40,000 and 1,98,000 आया. Tins का cost 2,16,000 and 72,000 आया. Wages का cost 1,80,000 and 64,800 आया है. Production overheads मेरा 2,70,000 and 97,200 आया है. Admin selling expenses मेरा 86,400 और 36,000 आया है. Right friends? तो ये है हमारे cost. And now once we have got all the bifurcation, we are in position to make the cost sheet for the two products. ये columnar cost sheet बनेगा. चलो बनाते हैं. X and Y. Shoes Polish Company Limited. Cost sheet for black and brown polish for the year दिया ही नहीं है, we put a dash. अब because production quantity sales quantity दो है, हम कॉलम में ही लिखेंगे. So let's start with the format. इधर कितने कॉलम्स बनेंगे बता देती हूँ. Obviously सबसे पहले particulars, 2 main columns black polish, brown polish और आखिरी कॉलम होगा टोटल. अब ये 3 कॉलम्स बनाकर सबसे पहले प्रोडक्शन और सेल्स क्वांटिटी लिख लेते हैं. माय प्रोडक्शन क्वांटिटी is 15 lakhs, 5 lakhs. Sales quantity is 14 lakh 40 and 6 lakhs. इसका टोटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम जो ब्लैक पॉलिश और ब्राउन पॉलिश है वो कॉलम्स में 2 सब कॉलम्स बना देंगे भाई, फॉर रुपीस एंड कॉस्ट पर यूनिट. रुपीस कॉस्ट पर यूनिट, रुपीस कॉस्ट पर यूनिट. सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी विद द फॉर्मेट? If yes, then let's start. A part is direct cost. उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं और यहां पर सबसे पहले पॉलिश कॉस्ट आएगा मटेरियल्स में, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. टोटल है 7,38,000. उसका बाइफिकेशन हमने वर्किंग नोट 2 में किया है. यू कैन सी दिस, इट इज 5,40,000 and 1,98,000. $5,40,000 and 1,98,000. Then next cost is tins. Total is 2,88,000.
जिसका बाइफिकेशन फिर से देख लो वर्किंग नोट 1 में 2,16,000 and 72,000. ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. द नेक्स्ट कॉस्ट इज वेजेस. हमारा टोटल कॉस्ट है वेजेस का 2,44,800, राइट. बाइफिकेशन ऑफ विच इज देयर इन द वर्किंग नोट 1,80,000 and 64,800. There is no direct expense. इसका टोटल ले लो. We get the total as prime cost. Total is 9,36,000. 3,34,800. 12,70,800. ये मिल गया प्राइम कॉस्ट. देन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट. इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स. द टोटल इज 367,200. बाइफिकेशन 2,70,000 and 97,200. 2,70,000 and 97,200. इसके बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट. देन एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है नहीं. वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. तो सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा भाई. कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? टोटल 16,38,000. ब्लैक का, सॉरी ब्राउन का करते हैं पहले. 4,32,000. ब्लैक का है 12,06,000. सो दिस इज फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वी हैव गॉट. अभी एडजस्ट करेंगे हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक. वी ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट. अब ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 48,000 है. ओके 48,000 है. उसका कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखा है इन द क्वेश्चन. 80.4 से लेना है. और ब्राउन का ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 है, 0.864 से लेना है, राइट फ्रेंड्स. 0.864. तो come on, multiply 48,000 into 0.804. You get 38,592 and 1,60,000 into 0.864. You get 138,240. These amounts are to be added, right friends. Let's take the total of opening stock. 38,592 plus 138,240, you get 176,832. इसके बाद we'll subtract closing stock of finished goods minus closing stock of finished goods minus closing stock of finished goods. इसके यूनिट्स हमको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में देख लो. 1,08,000 यूनिट्स ब्लैक के और 60,000 यूनिट्स ब्राउन के. अब इसको कैसे वैल्यू करें, हाउ टू वैल्यू इट, ये हमने सीखा है. लेट मी टेक यू टू दैट एक्सप्लेनेशन. हमने ये देखा था एक्सप्लेनेशन. वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड स्टॉक. अगर ओपनिंग स्टॉक है
तो इट इज टू बी वैल्यूड एट प्रीवियस ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये सम में हमको प्रीवियस ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वाज 0.804 एंड 0.864 दे रखा था. हमने ओपनिंग स्टॉक को उस तरह वैल्यू कर लिया. अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की. क्लोजिंग स्टॉक इज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर, हम फीफो अज्यूम कर रहे हैं, तो उसको करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वैल्यू करना होगा. करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना होगा. तो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सी वी नो द टोटल, इट्स 12,06,000 एंड 4,32,000, पर हमको पर यूनिट चाहिए सो दैट वी कैन वैल्यू 1,08,000 एंड 60,000 यूनिट्स. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये है 12,06,000, बट दिस इज फॉर टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस दैट इज 15 lakhs, राइट? सो डिवाइड कर दो, यू गेट 0.804. आई रिपीट, 12,06,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी 15 lakhs है. डिवाइड करने पर 0.804 आता है, यानी एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0.804 है. तो जो क्लोजिंग स्टॉक में 1,08,000 यूनिट्स है उनका क्या होगा? इंटू 1,08,000 you get friends, you get 8 lakh sorry 86,832. Similarly we have to do for brown polish. टोटल है 4,32,000. ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरे 5 लाख यूनिट्स के लिए है. एक यूनिट का आता है 0.864, आता है 0.864 मल्टीप्लाई बाय 60,000 यूनिट्स कर लो, यू गेट 51,840. What is the total of closing stock, friends? 138. It is 138,672. तो ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अब हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. $11,57,760. $5,18,400. Total 16,76,160. या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया. उसके बाद हमारा जो आखिरी खर्चा है दैट इज एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, जो हम ऑलरेडी बाइफिकेट कर चुके हैं इन द वर्किंग नोट नंबर 2. लेट्स राइट दैट अमाउंट. इट इज 86,400 and 36,000. टोटल आता है 122,400. We add this to get the cost of sales. Come on, find out the value of cost of sales. $12,44,160.
5,54,400, 17,98,560. दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें ऐड करें प्रॉफिट टू गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स. सेल्स रिटेलिंग एट, याद है फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था. क्वेश्चन में देखो बेटा, वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4. इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में सेलिंग प्राइस दिया था 1.08 एंड 1.2. Come on, get the value of sales. $15,55,200. प्रॉफिट भी ढूंढ लो इसी का. यू गेट 3,11,040. $7,20,000 is the value of sales for Brown. $165,600 is the profit. टोटल सेल्स निकाल लो. $22,75,200. $4,76,640. राइट. तो ये है हमारा प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज और कंपनी का. राइट. बाकी के पर यूनिट डिटेल्स तुम अपने आप निकाल लेना. ओके. तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. और इसी के साथ जो हमारे कॉस्ट शीट में वैरायटी थी, राइट, जो हम करना चाहते थे वो खत्म हुई. ओके. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे कि यार मैडम ने कोई स्ट्रेट वाला सम नहीं करवाया. तो यार ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया वो सीधा वाला कॉस्ट शीट ही था, भले 2 प्रोडक्ट आता बट सीधा वाला था. ओके. तो उसके साथ जो हमारा इजी पार्ट है वो भी मैनेज हो गया. ओके. तो कॉस्ट शीट के सम्स खत्म होते हैं. आगे है प्रैक्टिस सेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके. थैंक यू.